السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 27ویں پارے کی مختصر سی تشریح مجھے رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ کل جو پارہ آپ کے سامنے 26واں چل رہا تھا، اس کے اخیر میں قوم لوط کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ قوم لوط کا تذکرہ اللہ رب العالمین آج کے پارے کی ابتدا کے اندر بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی تخلیق کیسے اللہ رب العالمین نے کی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر ایک عظیم آیت ہے، ارشاد فرما رہا ہے ہماری تخلیق کا مقصد۔ ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی۔ اب اللہ نے ہمیں پیدا تو کر دیا، کیا بنا مقصد کے پیدا کر دیا؟ جیسے ہم میں سے کئی لوگ جیتے ہیں بنا مقصد کی زندگی، کھائے پیے، کاروبار کیا، یہ کمایا وہ کمایا، کام ختم، کوئی مطلب نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں دین کیا کہہ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں دین مجھے کیا سکھا رہا ہے، انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، دین کیا کہہ رہا ہے، دینی تعلیمات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے۔ ان کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو کوئی مقصد نظر ہی نہیں آتا۔ ان کے پاس وقت نہیں دین کے لیے، ان کے پاس وقت نہیں شریعت کے لیے، ان کے پاس وقت نہیں اپنے اللہ رب العالمین کے لیے جو انہیں پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے۔ کیا کام کی ہے زندگی؟ وہ زندگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حاسب الناس، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس بنا مقصد کے پیدا کر دیا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وہی مقصد سورہ زاریات آیت نمبر 56، 57، 58، 56، 57، 58 کے اندر بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اچھا، عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عبادت پڑھ لے، نماز کر لے، روزے رکھ لے، حج رکھ لے، یہ صرف مقصد نہیں۔ عبادت ایک بہت بڑا ورڈ ہے جو میں پہلے تشریحات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عبادت کے اندر ہر نیک کام آ گیا، ہر اچھا کام آ گیا، امر بالمعروف آ گیا، نہی عن المنکر آ گیا، نیکی کا حکم آ گیا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا آ گیا، ماں باپ کا حق ادا کرنا آ گیا، پڑوسی کا حق ادا کرنا آ گیا، ہر نیکی عبادت۔ اور اس کے بعد عبادت کی تشریح میں محدثین اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ یہ کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیوحدون، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اور ماننے کا مطلب صرف زبان سے نہیں، ان کے عمل میں توحید نظر آئے، ان کے عمل میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا تصور نظر آئے، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک مانا کہ ہمیں پیدا کرنے والا وہ، ہمیں زندہ رکھنے والا وہ، اور ہمیں مارنے والا وہ۔ عبادت کے لائق صرف وہی، اور جتنے نام، جتنی صفات اللہ کی ہے اس میں وہ اکیلا۔ توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات، ان تین چیز کے اقرار کا نام ہے توحید۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری پیدائش کا مقصد ہے تم لوگوں کو، جو میں نے پیدا کیا ہے اس پیدائش کا مقصد ہے توحید، کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ڈیٹیلنگ کر رہا ہے، شارٹ کہہ دیا، اب ڈیٹیل بتا رہا ہے ما اريد منهم من رزق، میں اس کے بدلے ان سے روزی نہیں چاہتا۔ اس سے بھی پتا چل گیا کہ جس کے آگے چڑھانا پڑے وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کے آگے دینا پڑے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، کیونکہ رب کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ربوبیت کس کی، الوہیت کس کی، توحید کس کی مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں روزی دینے والا اور سخت پکڑ کرنے والا۔ روزی دینے والا تو وہ، اس کو کوئی کیا روزی دے گا؟ اس کے آگے تم دے پاؤ گے؟ اس کو چڑھاوے چڑھا پاؤ گے؟ ارے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلانے پلانے اور تمہارے کاروبار کا انتظام کرنے والا ہے۔ اور اگر زیادہ دور مت جاؤ، قریب میں اس کی نشانی دیکھنا ہے تو صرف اتنا دیکھ لو کہ عام دنوں میں ایک آدمی کو اگر دکان جانے سے اس کے گھر والے روک دیں کہ آج دکان مت جاؤ، تو بولتا تھا کھاؤ گے کیا؟ میں جاؤں گا نہیں تو کھاؤ گے کیا؟
रब्बुल आलमीन ने बताया तू 60 दिन से घर में बैठा है, फिर भी अल्लाह ताला भूखा नहीं रख रहा, तुझे खाना खिला रहा है। ठीक है, जैसा कम ज्यादा चाहे जो है, जो गरीब है उन तक अमीरों के जरिए पहुंच रहा है, जो मिडिल क्लास है उनके पास भी पहुंच रहा है, हर एक के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं ना कहीं से तो रोजी का इंतजाम करवा रहा है। वो अल्लाह कहता है मैं खिलाने वाला, मैं खिलाने वाला, मैं रोजी का देने वाला, मैं अता करने वाला, इसलिए मुझसे मांग, मेरे आगे झुक, मुझसे पुकार। और यहां अल्लाह में अपनी पैदाइश का मकसद बता रहा है कि तुझे पैदा करने का मकसद ही तौहीद है। इसीलिए लोग जो कहते हैं ना, अरे लोग तो तौहीद की बात करते बार बार, तौहीद इसलिए क्योंकि तौहीद के बिना कुछ भी कबूल नहीं होगा। न तेरा नमाज, न तेरा रोजा, न तेरी ज़कात, न तेरा हज, न तेरी नेकी, सदका, खैरात, गरीबों की मदद, कुछ भी कबूल नहीं होगा अगर तेरे अमल के अंदर तौहीद ना हो, क्योंकि बिना तौहीद के अल्लाह अमल को कबूल नहीं करता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर हमें यह बताया कि रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा और सिफात किसके लिए है, इस कायनात का खालिक और मालिक कौन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बताया। उसके बाद सूरह तूर, उस पहाड़ का नाम जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया और नबूवत दी। चूंकि सूरत के अंदर तूर पहाड़ की कसम खाई है अल्लाह ताला ने, इसलिए तूर कहा है। अच्छा, एंड की सूरतों में अब एक चीज और देखेंगे, मखलूकात की कसम, कलम पेन की कसम अल्लाह ने खाई, तूर पहाड़ की कसम अल्लाह ने खाई, तो अब हमें तो हराम है, हमें तो मना है। तो इससे ये कहा है उलमा ने कि अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए तो हराम करार दिया है कि जरूरत पड़ने पर सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जाए, हम मखलूक की कसम नहीं खा सकते। कुरान कसम, अब्बा की कसम, अम्मा की कसम जो हमारे यहाँ चलता है वो जायज नहीं है। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तो ये सारी मखलूक है, वो जिसकी चाहे कसम खा सकता है, क्योंकि तो वो तो इनको पैदा करने वाला ना, जिसकी चाहे वो कसम खाए। और हमारे लिए जायज नहीं कि मखलूकात की कसम खाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर और इसके बाद तकरीबन जितनी सूरतें आ रही हैं उनके अंदर जन्नत की सिफात को बताया। इतनी प्यारी सिफात है ना वाकई कि अगर आप उसको पढ़ोगे ना तो आपके दिल के अंदर एक तलब आ जाएगी। अल्लाह ताला कह रहा है मुत्तकीन लोग जन्नत में रहेंगे, नेमतों में रहेंगे, फ्रूट खा रहे होंगे जो अल्लाह ने उन्हें दिए होंगे। अल्लाह ताला कहता है आयत नंबर 17, 18, 19 सूरह तूर के अंदर, आगे की सूरतों के अंदर भी बता रहा है सुकून में होंगे, टेंशन फ्री होंगे, कोई गम नहीं होगा, इनामात अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन लोगों के ऊपर होंगे। फिर अल्लाह ताला जहन्नमियों के बारे में भी बता रहा है, ये जहन्नमियों को कैसे कैसे अजाब दिए जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैसे कैसे नाराजगी इन लोगों पर नाजिल होगी। और जहन्नमियों की एक सबसे बड़ी बुराई जो उनको जहन्नम में लेकर जाएगी वो उनका शिर्क होगा। अल्लाह ताला यहाँ पर फिर कह रहा है शिर्क यानी जहन्नम के तस्करे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तकरीबन आयत नंबर 32 से आयत नंबर 45 तक बार बार सवालिया अंदाज में, क्वेश्चन वाले अंदाज में अल्लाह ताला कुछ बातें कह रहा है। बताओ ये जो तुम शिर्क करते थे, हम यक़ूलून नक़बलहु बल ला युमिनून फलियातू बिहदीस मिस्लिही, पहली चीज तो ये कुरान पर एतराज करते थे कि भाई कुरान कोई अल्लाह की किताब नहीं है, तुमने ऐसी बना लिया है तो कहा लाके दिखाओ ना। उसके बाद अल्लाह ताला अब यहाँ पर इनसे सवालात कर रहा है। देखिए अल्लाह ताला के बोलने का अंदाज, कभी कभी होता है ना टीचर बच्चों को कुछ सिखाने के लिए सवाल करता है, उसका सवाल का मतलब ये नहीं कि उसको पता नहीं, टीचर को सब पता है, पर वो बच्चों को सिखाने के लिए सवाल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूकात, देखिए अल्लाह की मिसाल किसी चीज से नहीं है। अगर मैं कहीं पर भी पूरी तशरीह में वर्ड यूज कर रहा हूं कि मिसाल दे रहा हूं, जैसे मैंने अभी कहा टीचर समझाता है, तो मिसाल अल्लाह के लिए नहीं है, मिसाल हमारे समझने के लिए, वरना अल्लाह जैसा तो कोई है ही नहीं। अल्लाह से किसकी मिसाल दोगे? अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह यक है, तन्हा है, अकेला है, उस जैसा इस कायनात में कोई नहीं। मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दी जाती है, क्योंकि अकीदे वाली चीज है, इसलिए मैं उसको जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला कहता है अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, अच्छा ये लोग क्या किसी और चीज से पैदा हुए या ये खुद पैदा करने वाले? मतलब ये जो शिर्क कर रहे हैं, तो ये बताओ कि ये शिर्क जो तुम कर रहे हो, क्या जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो ये तुम्हारे अलावा किसी और चीज से पैदा हुए? माँ बाप से पैदा नहीं हुए, नुतफे से पैदा नहीं हुए, या ये पैदा करने वाले हैं? क्या इन्होंने कुछ बनाया क्या? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग है, कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या इनने आसमान बनाया? क्या जमीन बनाई है? क्या है क्या इनके पास? क्या कुदरत है इनकी? क्या ताकत है इनकी जो तुम इनको अल्लाह के बराबर खड़े करते हो? खुद पैदा हुए माँ बाप से, किसी को पैदा किया नहीं, आसमान बनाया नहीं, जमीन बनाया नहीं। अल्लाह ताला कई दलील रख रहा है। अच्छा बताओ क्या इनके पास जमीन के खजाने हैं? क्या पूरी जमीन में जितने खजाने इनके पास हैं क्या, जिस पर ये जिम्मेदार है? नहीं। या इनके पास ऐसी चढ़ाव है क्या अल्लाह तक जाने जितनी, या चढ़ के अल्लाह के पास चले जाए? है? कहा नहीं।
अच्छा, अल्लाह ताला कई सवाल कर रहा है कि जब तुम इन लोगों से इबादत करते हो, क्या ये गैब जानते हैं? क्या इनके पास ताकत है? क्या इनके पास कुव्वत है? हर चीज अल्लाह ताला सवाल कर रहा था कि जवाब रॉन्ग आए, जवाब ना में आए कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी हमने इनको शरीक किया था, फिर भी अल्लाह हमने इनको तेरे साथ किया था, अल्लाह ताला तेरे बराबर खड़ा कर दिया था। अल्लाह ताला इबादतों में, दुआओं में, नमाजों में, रोजों में हमने इनको तेरे साथ शरीक कर लिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये हमारी खता है, पर उस दिन खता रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी ना होगा, क्योंकि उस दिन बोलने से कोई अमल होने वाला नहीं। उसके बाद आपके सामने सूरत है, सूरह नज्म। नज्म कहा जाता है सितारों को। अल्लाह ताला क्योंकि सूरत के अंदर सितारे की कसम खा रहा है, उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर हमारे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अजीम मकाम बता रहा है। मैं कहता हूं ना कि आप सीरत को पढ़ेंगे ना तो आपके दिल के अंदर अल्लाह के नबी की बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उन जैसा कोई है ही नहीं, कोई नहीं उन जैसा, कोई किरदार नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं उन जैसा, कोई उनके बराबर शख्सियत नहीं कि तुम उनको अल्लाह के नबी के बराबर खड़ा करो। यानी जैसे अल्लाह की जात में शिर्क हराम है, वैसे ही अल्लाह के नबी के साथ उन जैसा किसी को मानना, उनके अलावा किसी और की इत्तिबा करना भी शिर्क फिर रिसाला है, रिसालत के अंदर शिर्क करना है। उन जैसा तो है ही नहीं। उनका मकाम बहुत आला है, उनका मर्तबा बहुत आला है। अल्लाह ताला उनका मकाम बताते हुए इरशाद फरमा रहा है सूरह नज्म आयत नंबर 3, आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाया कि देखो अल्लाह के नबी का मकाम इतना ऊंचा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं वो रब का कलाम होता है। देखिए कितनी बड़ी बात अल्लाह ने कह दी। ये नबी जबान उनकी है, बोल वो रहे हैं, पर कलाम किसका है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इन्हें गलत नहीं बोलते, इनकी बातों में शक मत करो, इनकी तालीमात में शक मत करो। ये हलाल बताएं तो मान लो, ये हराम बताएं तो मान लो। और मैं कहता हूं कि इस मौके पर आप ये भी समझ लें कि अल्लाह ताला ने जैसे अपने अहकामात को मुस्तकिल शरीयत और मनहज बताया है, वैसे अल्लाह के नबी को भी अल्लाह ने यह हक दिया है कि हलाल भी कर सकते हैं, हराम भी कर सकते हैं चीजों को। मैं मिसाल पहले दे चुका हूं कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में कहा मुर्दा खाना हराम, मछली खाते कि नहीं खाते? हलाल किसने की? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरना मछली हराम हो जाएगी। अल्लाह ने तो कुरान में बोला है कि मुर्दा हराम, मछली मुर्दा ही होती है। हराम हुई कि नहीं हुई? यकीनन हुई। अगर मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कहा होता, सुनन अबू दाऊद की रिवायत, कि तुम्हारे लिए वो मुर्दा हलाल, कौन सा मुर्दा? उसने कहा मछली। मछली को अल्लाह के नबी ने हलाल किया। अब लोग कहते हैं ना कि कुरान से काम हो जाएगा, हदीसों की जरूरत नहीं है। अरे हदीस के बिना कुरान को ही नहीं समझ सकते। पूरा का पूरा कुरान समझने के लिए हदीसों की जरूरत है, क्योंकि मेरे और आपके नबी का ये मकाम है कि अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के अंदर इसीलिए भेजा था, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, कि आप जाइए दुनिया वालों को किताब भी सिखाइए और हिकमत भी सिखाइए। यानी अल्लाह का कलाम भी सिखाने का काम आपका और हदीस सिखाने का भी काम आपका। अब अल्लाह का कलाम सिखाने का मतलब कि तशरीह कीजिए, हदीसों को, आयतों को बताइए, आयत जो समझ में नहीं आए उसको समझाइए। तो यही सब तो हदीस है। अगर इसे छोड़ दोगे तो दिन अधूरा कर दोगे, दिन समझ नहीं पाओगे। और अगर मैं इस टॉपिक पर बात करने जाऊं, इंशाल्लाह इस टॉपिक पर मैं आगे बात करूंगा, मेरी सीरीज आएगी इंशाल्लाह हदीस की अहमियत पर भी, कि जो लोग हदीसों का इनकार करते हैं उनका इनकार कितना गलत, कितना बेमाना और कितना बेअखलाक है, इंशाल्लाह मैं उसके अंदर उसको साबित करूंगा। मेरे यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी का मकाम बताया। फिर उसके बाद मेराज के वाक़े पे कैसे जिब्रील अमीन के आप कितने करीब गए, वो अल्लाह बता रहा है कि जिब्रील अमीन को आपने उनकी असली सूरत के अंदर देखा, वो आपको लेकर गए, अल्लाह ताला से आपकी गुफ्तगू हुई, अल्लाह ताला ने यानी जो वो सारे मामलात थे मेराज के वहां पर इशारतन जिक्र किया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आसमान और जमीन की तख्लीकात का जिक्र करता है, अपनी नेमतों का जिक्र करता है। फिर इब्ने आदम को ये कहता है, आयत नंबर 32, अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर हमें हुक्म दे रहा है कि तुम गुनाहों से अपने आप को बचाओ, गुनाहों से अपने आप को दूर करो, हराम से अपने आप को दूर करो और हलाल पर अपने आप को लगाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है सूरह नज्म आयत नंबर 32, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्ला लमम, वो लोग जो अपने आप को बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से बचाते हैं, शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, जितने भी हराम काम, जिनाकारी, बदकारी, सब जो बड़े बड़े गुनाह हैं, अल्लाह ताला कहता है वो लोग जो अपने आप को बदकारी, जो अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचाते हैं, फहाशी के कामों से बचाते हैं। हाँ ठीक है, गलती से कभी छोटे गुनाह हो भी जाए पर अपने आप को बचाते हैं,
गुनाहों में मुलव्विस नहीं होते हैं, अल्लाह कहता है इनके लिए हुस्ना है यानी जन्नत है, इनके लिए आसानियां हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़रा। अब देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर पहले तो गुनाहों का तज़किरा कर रहा है। देखिए अल्लाह का अंदाज, अपने बंदों से मोहब्बत बताने का अंदाज कि नेक वो, मोमिन वो, जन्नती वो जो अपने आप को गुनाहों से बचाता है, हराम से बचता है, हलाल पर रुकता है और अपनी जिंदगी को हलाल बनाता है। पहले तो हुक्म दे दिया। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ में ये भी बता रहा है कि अगर गुनाह कर लिए, खता कर ली, कबीरा गुनाह, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह, चाहे जो कर लिए, अब अगर तू झुक कर अल्लाह के पास आएगा तो अल्लाह माफ करने वाला भी है, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना रब्बका वासिउल मग़फ़िरा। तेरा रब तो बहुत वसी मग़फ़िरत रखता है, बहुत बड़ी मग़फ़िरत रखता है, वसी मग़फ़िरत है। जैसा कि बाज़ हदीस के अंदर आता है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या इब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि ख़ताया, कि इब्न आदम अगर तो दुनिया के सारे गुनाह लेकर मेरे पास आ जा और शिर्क करके नहीं आएगा, मैं दुनिया भर की मग़फ़िरत लेकर तुझसे मिलूंगा और तुझे माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला माफ करने वाला, अल्लाह ताला माफी को पसंद करता है। जागने वाली रात अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ ही पढ़ते हैं, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मैं माफ कर दे। माफी मांगो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, क्योंकि अल्लाह कहता है इन्ना रब्बका, क्योंकि तेरा रब तो बड़ी वसी मग़फ़िरत रखता है और वो जानता है, वो सब जानता है, जो उसने जमीन में बनाया है वो जानता है। जब तुम माँ के पेट में थे ना, जब भी तुमको जानता है, जब तुम निकल कर बाहर आए तब भी तुम्हें जानता है। अल्लाह यहाँ पर एक बड़ी प्यारी चीज हमें इरशाद फरमा रहा है आयत नंबर 32-33 के अंदर, फला तुज़क्कू अनफुसकुम व हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप से अपनी तारीफ मत करो, अपनी जबान से अपना तज़किया मत करो, मैं तो बहुत अल्लाह वाला हूँ, मैं तो बहुत इबादत वाला हूँ, मैं तो बड़ी नमाजों वाला हूँ, मैं तो तक़वे वाला हूँ, मैं तो उम्रे करने जाता हूँ, मैं तो हज करने जाता हूँ, मैं तो ये खिलाता हूँ, मैं तो गरीबों को देता हूँ। अल्लाह ताला कह रहा है अपने मुंह से क्यों तारीफ कर रहे हो, अपनी तारीफ कर रहे हो, अपना तज़किया कर रहे हो, अपने आप को अच्छा बता रहे हो, अपनी इबादतों को बता रहे हो। अल्लाह कहता है मैं जानता हूँ। अरे तू माँ के पेट में था जब भी मैं जानता था, पैदा हुआ तब भी मैं जानता था, तेरी जवानी मुझे पता, तेरा बुढ़ापा मुझे पता, तेरा अंधेरा मुझे पता, तेरा उजाला मुझे पता, मुझे बता रहा है, मेरे सामने तज़किया कर रहा है। इसलिए अल्लाह ने बोला अपना तज़किया मत कर, अपनी नेकियों को बहुत ज्यादा उजागर मत कर, जितना हो सके छुपाने की कोशिश कर। हाँ, जब जरूरत हो दिखाने की कि आपके दिखाने से दूसरे भी आगे आएंगे तब दिखाना अलग बात है, वो भी साबित है, पर आम हालतों के अंदर अपना तज़किया मत करो, अपनी अच्छाइयां बयान मत करो, अपनी इबादतें, अपनी नेकियों को बयान मत करो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी तज़किया, अपनी नफ्स की बुराइयों को मत बताओ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम में मुत्तकी कौन है, अल्लाह जानता है तक़वे वाला कौन है, अल्लाह जानता है उससे डरने वाला कौन है। अल्लाह को सब पता है, तुम अल्लाह को बताने वाले नहीं, अल्लाह खुद जानता है। ये अल्लाह का इल्म है, इतना ज्यादा वसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज को जानता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बता रहे हो जो अल्लाह को पता नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक उसूल बताता है आयत नंबर 38 के अंदर, जो हमारे यहाँ कुछ लोग ये बदअकीदगी रखते हैं अपने अंदर कि ठीक है साहब हम तो कितने भी गुनाह कर ले, फला फला फला, वो तो हमारे सारे गुनाह ले जाएंगे, सारे गुनाह ले जाएंगे। अल्लाह ताला उसूल बता रहा है, मैं कहता हूँ किसी और से मत पूछो, न किसी आलिम से, न किसी मुफ्ती से, न किसी मौलाना से, न किसी जानकार से, आपका रब आपको बता रहा है उसकी तो मानोगे ना। भाई हो सकता है मौलवी इधर वाले उधर वाले अलग है, हमारे कैटेगरीज बनी हुई है ना, किसकी लेना किसकी नहीं लेना। अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है, कुरान पढ़ लो समझ लो, इंशाल्लाह समझ में आ जाए। अल्लाह कह रहा है वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, किसी को बाहर नहीं किया अल्लाह ने, सबको शामिल कर दिया, सारी इंसानियत इसमें शामिल, सारे जिन्नात सारे इंसान इसके अंदर शामिल, कि कोई इंसान किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जिसका है उसी को उठाना है, जिसका गुनाह उसी को उठाना, जिसकी नेकी उसी को मिलेगी, जिसका गुनाह उसी को मिलेगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो अपना अकीदा बदलो, अपना अकीदा सुधारो कि मुझे अमल करना है अपने रब के लिए, मेरा रब जानने वाला, मैं जानने वाला, मेरा बोझ क़यामत के दिन कोई नहीं उठाएगा, कोई मेरी मग़फ़िरत नहीं करवाएगा, कोई मेरे लिए आगे ना आएगा। हाँ ये बात यकीनी है कि आपके और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर में गिरकर दुआएं मांगेंगे, सिफारिश करेंगे और अल्लाह उनकी सिफारिश सुनेगा भी, पर उसका मतलब ये नहीं कि गुनाह किसी और को दे देगा, वो अल्लाह की माफी होगी। तो इसलिए कभी ये अकीदा किसी के बारे में मत रखो कि वो मेरा गुनाह उठा लेंगे या वो मुझे माफ करवा देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन, तो आयत नंबर 34, 42, 43, 44 में बताया कि अल्लाह तो वो है जो हंसाता और रुलाता है,
अल्लाह तो वो है जो मारता और जिलाता है, जिंदगी देता है। वही तो है जो मर्द औरत को पैदा करता है एक मनी के नुत्फे से। यानी कोई सोच नहीं सकता है कि नुत्फे से इंसान बन जाए, पर पैदा करने वाला जात वही तो है। वही है जो अमीर करता है, वही है जो गरीब करता है, वही हर चीज का मालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर अपनी खिलकत बता रहा है। उसके बाद सूरे कमर, कमर कहा जाता है चांद को, चूंकि इसके अंदर एक वाकये का तस्करा है। कुफ्फार मक्का ने वैसे तो अक्सर डिमांड किया ही करते थे आपसे, उनका मकसद था डिमांड करके मानना मकसद नहीं था, डिमांड करके परेशान करना मकसद था। तो उन लोगों ने डिमांड की, मक्की जिंदगी के अंदर आपसे डिमांड की। आयत नंबर 1-2 में अल्लाह ने उसी का तस्करा किया है कि उन लोगों ने डिमांड की, अल्लाह के नबी ऐसा करो ना, चांद के 2 टुकड़े करके बताओ। तो डिमांड देखो कैसी कैसी मानते थे। आपने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा करवाया। अल्लाह ताला ने आपकी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अल्लाह ताला कहता है, उसी का बयान करता है कि कयामत करीब आ गई और चांद 2 हिस्सों में टूट गया। वहीं आयतन, लेकिन आयत देखने के बाद भी वो लोग क्या बोलते हैं, ये तो जादू है, ये तो जादू किया इन्होंने, सच में ऐसा नहीं हुआ। जबकि दुनिया भर ने देखा कि चांद के 2 टुकड़े आपने कर दिए थे उंगली के इशारे से। ये अल्लाह के नबी का मकाम भी था और आपका मौजज़ा भी था, पर बहरकैफ ना मानने वाला कभी नहीं मानता। अब इस सूरत के अंदर आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा गौर करनी है, और जो मेरे इस दर्स का मकसद है, मेरे इस दर्स कुरान का बुनियादी जो मकसद है, वो यही आपको मैं कुरान के करीब लाना चाहता हूं। कुरान से मोहब्बत आपके दिलों के अंदर पैदा करवाना चाहता हूं। वो कुरान कि जिसकी मोहब्बत आपके दिलों में तो है, पर चूमने वाली, रखने वाली, सजाने वाली, मैं चाहता हूं अमल वाली मोहब्बत जो आपके और हमारे दिल के अंदर आना चाहिए। रब्बुल आलमीन देखिए यहाँ पर एक आयत को अल्लाह ताला बार बार कोड कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। आयत में देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, सूरह कमर ही के अंदर आयत नंबर सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा 17 के अंदर। पहले आप पूरा पसे मंजर देखना, बैकग्राउंड देखना कि अल्लाह क्या कह रहा है। पहले तो कौमों का तस्करा चल रहा है, कौमों पर अल्लाह के अजाब का तस्करा चल रहा है। हजरत नूह की कौम पर अजाब आया, कौम आद पर अजाब आया, कौम समूद पर अजाब आया। यानी अल्लाह ताला आपको वो बातें बता रहा है जो आप जानते नहीं थे, आप उस जमाने में मौजूद नहीं थे, आप उस बातों की डिटेल बिना अल्लाह ताला के बता ही नहीं सकते थे, वो बातें आप बता रहे हैं। और उन आयतों के बाद अल्लाह ताला 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एक वर्ड रिपीट कर रहा है, एक आयत रिपीट कर रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने वाले के लिए। है कोई नसीहत हासिल करने वाला, है कोई पढ़ने वाला, है कोई गौर करने वाला। अब यहां पर आप सोचिए ऐसा क्यों। पहली चीज अल्लाह ताला बता रहा है कि देखो ये कौमों का तस्करा तुम्हें पता नहीं था, अब अल्लाह के नबी अगर बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि कुरान सच्चा है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान में जो लिखा है सब हक है, तुम इसका इनकार नहीं कर सकते। दूसरा मकसद हमारे दिमागों को झंझोड़ना कि कभी ये मत बोलना कुरान मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आता, कुरान को कैसे पढ़ेंगे। कुरान पढ़ने के लिए तो 18 उलूम की जरूरत है, यकीनन जरूरत है, उलूम चाहिए, इल्म चाहिए, पर वो कुरान की डीपनेस के लिए, कुरान को ज्यादा गहराई में जाने के लिए। पर नॉर्मली कुरान को समझना एक मोमिन के लिए आसान था, आसान है, आसान रहेगा। और उसके लिए सिर्फ इतना समझना काफी है कि जिसकी किताब है वो इस किताब के बारे में सच बताएगा, या हम जैसे लोग। जिसकी किताब है, जो इस किताब का बोलने वाला, जिसके अल्फाज है, जिसकी बातें हैं, वो कह रहा है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। अल्लाह ताला कह रहा है आयत नंबर 17 के अंदर, आयत नंबर 22 के अंदर, आयत नंबर 32 के अंदर और आयत नंबर 40 के अंदर। अल्लाह ताला कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान बनाया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। जिसकी किताब है वो बोल रहा है आसान और बंदे बोल रहे मुश्किल। बात किसकी चलेगी? जिसकी किताब, जिसकी किताब। और मिसालें ढेरों, लाखों, करोड़ों मिसालें उठाकर देख लो कि गैर मुस्लिम है, हिंदी जानने वाला, चाइनीज जानने वाला, बंगाली जानने वाला, मराठी जानने वाला, फ्रेंच जानने वाला, वो अपनी जबान में डायरेक्टली कुरान को पढ़ता है, समझता है और मुसलमान हो जाता है। और क्या बोलता है? कुरान मैंने पढ़ा, मेरी जिंदगी खुल गई, कुरान मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, कुरान मैंने पढ़ा, मेरे दिल में उतर गया। हिंदी पढ़ना, अरे ढेरों इंटरव्यू, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है इंटरव्यूज के जरिए कि कोई नहीं आया, सिर्फ कुरान ही पढ़ के समझ में आ गया। तो वो एक आदमी जिसने जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा, कुरान नहीं खोला, कुरान नहीं देखा, वो कुरान पढ़ता है और समझ में भी आ जाता है। और हम बचपन से अलीफ बा ता ता पढ़ रहे हैं, खुतबे में कुरान सुन रहे हैं, तकरीरों में कुरान सुन रहे हैं, दर्स में कुरान सुन रहे हैं, और हमें ये कहा जाए तुझे समझ में नहीं आएगा।
اور ایک आदमी जिसने कभी नहीं पढ़ा वो पढ़ता है, सुनता है, समझता है और इस्लाम कबूल कर लेता है। बात किसकी सच्ची होगी? इस कुरान वाले की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो कह रहा है पढ़ो। हाँ मुश्किल है किसके लिए? जो पढ़ता ही नहीं, कभी खोला नहीं, कभी देखा नहीं, वो दूर से बोलता हूं बहुत मुश्किल है साहब, 18 उलूम लाओ पहले उसके बाद समझ में आएगा। तो मैं कहता हूं हाँ भाई तू सही बोल रहा है, तेरे लिए यही, तू पढ़ता नहीं है ना, तूने कभी स्टडी नहीं की, तूने कभी गौर नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ कुरान के बहुत सारे उलूम हैं, कुरान सीखने के लिए उलूम चाहिए, पर वो कुरान की ज्यादा गहरी तालीमात के लिए, पर बेसिक तालीमात, बेसिक अंदाज में समझने के लिए कुरान आसान है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने कुरान को आसान बनाया है। अब उसका तीसरी चीज आप ये भी सोचिए ना कि अगर कुरान लोगों को समझ में नहीं आए तो नाजिल करने का फायदा क्या है? सिर्फ आलिम ही को समझ में आए, सिर्फ उलमा को समझ में आए तो यही मामला तो तौरात और ज़बूर के साथ हुआ, इंजील के साथ हुआ कि बस आलिम जानते थे, अवाम को पता ही नहीं था, इसीलिए तो गुमराही हुई। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान आसान है, कुरान आसान है। इसके आसान होने की एक दलील और ये भी है कि करोड़ों हाफिज कुरान के हैं, उसके अलावा किसी किताब को आपने हाफिज देखा? कि जबर जेर में गलती हो जाए, पीछे से 10-10 लुकमे आ जाते हैं जबर जेर की गलती पर। ये कुरान इतना आसान है, सीखने में आसान, याद करने में आसान, समझने में आसान, अमल में आसान, पर शर्त ये कि हाँ अल्लाह ने शर्त लगा दी है कि हमने कुरान को आसान बनाया है जो समझना चाहेगा उसके लिए, दूर से बोलने वाले के लिए नहीं, बहस करने वाले के लिए नहीं, ध्यान ना लगाने वाले के लिए नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि एक बार इस आयत को जिसे अल्लाह ने 4 बार रिपीट किया है एक सूरह कमर के अंदर, और जरूर कर लेना कि अल्लाह क्यों कह रहा है आसान है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं तो अक्सर प्रैक्टिकली मिसाल देता हूं कि जैसे आप एक नमाज पढ़ते, मैं इसी बात पर ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेन टॉपिक की बात है। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर, अब आप गए, इमाम साहब शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अब अपने को समझ में कुछ आ रहा है? तो अपन क्या कर रहे हैं? अरे दुकान जाऊंगा, मकान जाऊंगा, वो काम करना है, उसके बाद बच्चे को ले लूंगा स्कूल, उसको छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता ही नहीं चल क्या रहा है। और उसके बाद अल्लाह बोल रहा है नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। कैसे होगा तसव्वुर? जब इस कुरान को समझोगे। अब एक बार आपने कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करा, पहले दिन आपने सूरह फातिहा पढ़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे आलमों का रब है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो कयामत के दिन का मालिक है। अल्लाह ताला मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझे से मदद मांगता हूँ, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। उनका रास्ता जिन पर तेरा ही नाम हुआ, ए अल्लाह उनका नहीं जो भटक गए, अल्लाह उनका नहीं जिन पर तेरा गज़ब आया। अब आपने तर्जुमा पढ़ लिया, अब आप मस्जिद आए, अब जैसे इमाम साहब बोलेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तस्वुर आ जाएगा अल्लाह का जिक्र चल रहा है, अल्लाह जो सारे आलमों का रब है, कयामत का जिक्र चल रहा है, तो आपको डर लगेगा, दिमाग आएगा, कंसंट्रेशन बनेगा। नमाज से जो लोग बोलते हैं ना शिकायत करते हैं नमाज पढ़ता हूं दिल ही नहीं लगता, दिमाग भटकता है, ख्यालात भटकते हैं, ये सब इसलिए कि तुझे पता ही नहीं चल क्या रहा है, तुझे पता ही नहीं अल्लाह क्या कह रहा है। अरे इमाम साहब बोल रहे हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अफ़क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। इमाम साहब कह रहे याद करो उस दिन जिस दिन जमीन के अंदर ज़लज़ला आ जाएगा, जमीन फट जाएगी, मुर्दे बाहर आ जाएंगे। उस दिन इंसान कहेगा जमीन तुझे क्या हो गया है? वो कहेगी अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया है और मैं सोच रहा हूँ दुकान जाऊंगा, मकान जाऊंगा, गाड़ी बाहर खड़ी है, चाबी तो नहीं भूल गया, मोबाइल कहाँ रखा है, ध्यान नहीं आ रहा। क्यों? मुझे पता ही नहीं इमाम साहब क्या कह रहे हैं। कयामत बता रहे हैं, जलजला बता रहे हैं, जहन्नम बता रहे हैं, अजाब बता रहे हैं। और उसके बाद एक छोटा सा जवाब, हमारे बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, क्या करे शेख हुआ, अरबी कहाँ आती है अपने को? हिंदी आती, इंग्लिश आती, मराठी आती थी, क्यों सीखा? नौकरी के लिए सीखा ना, नौकरी अच्छी मिलेगी, पैकेज अच्छा मिलेगा, आईटी सेक्टर में हूं, पुणे पहुंच जाऊंगा, पुणे से मुंबई, मुंबई से अमेरिका चले जाऊंगा, यहां जाओ वहां जाओ, लाखों के पैकेज, उसके लिए सब सीख डाला। अरे फ्रेंच चाइनीज बोलते हैं हमारे यहाँ के लोग, उनके मुंह से अजीब ही लगती पर फिर भी बोलते, सब सीख डालते। क्यों? दुनिया का फायदा, अरे आखिरत का फायदा। अरबी सीखो, जबान सीखो, और जब तक अरबी नहीं आती, दुनिया की ऐसी कौन सी जबान है जिसमें कुरान का तर्जुमा मौजूद नहीं? पढ़ो, समझो, अल्लाह की कसम, नहीं तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तुमसे पूछेगा और अल्लाह को जवाब ना दे पाओगे। और कब्र में सवाल होगा तुमसे, कब्र में अल्लाह पूछेगा ना मेरा तेरा रब कौन, तेरा दीन कौन सा, तेरे नबी कौन से। उसके बाद यही पूछा जाएगा चौथा सवाल, कैसे पता चला, किधर से तुझे पता चला? तब तुम बोलोगे इंशाअल्लाह अगर पढ़ा होगा, समझा होगा, अल्लाह क़राअतु किताबक, मैंने तेरी किताब को पढ़ा, मैं उस पर ईमान लाया, मैंने उससे अमल किया। वरना क्या जवाब दो? सोचो कब्र के बारे में,
غور کرو قبر کے بارے میں، غور کرو عمل کے بارے میں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دے پاؤ گے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اپنے ٹاپک سے ہٹ کر تھوڑا ڈیٹیل میں نے اس پر بولا، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضرورت والی چیز تھی، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بعد میری بہت فیوریٹ صورت ہے، بہت پسندیدہ صورت ہے، کیونکہ اس کی آیتیں جب پڑھتے ہیں نا تو اتنا پیارا لگتا ہے، ماشاءاللہ ایک منظر بن جاتا ہے۔ بہت پیاری صورت، ویسے تو پورا قرآن ہی پیارا ہے، پورا قرآن پڑھنے سننے میں مزہ آتا ہے، پر اس صورت کی کچھ بات ہی الگ ہے۔ ایک آیت جب ریپیٹ ہوتی ہے نا بار بار ایک منظر ہی الگ بن جاتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، جسے ہم سورہ رحمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ واقعی قرآن کے اندر ایک مٹھاس ہے، قرآن کے اندر ایک شیرینی ہے، پڑھو گے نا آپ کو تب پتا چلے گا۔ میں تو چونکہ حافظ نہیں ہوں، اتنا اچھا نہ اپنے قرات ہے نہ اپنی آواز ہے، پھر بھی جب اس کو پڑھتے ہیں نا اکیلے کمروں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ قرآن بہت چاشنی ہے اس کے اندر، لوگوں کو میوزک میں مزہ آتا ہے، بولتے نا دو چار گانے سنتے ہوئے نا کام کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ میں تو اپنے کام جب کرتا ہوں نا تو گانا تو چاہیے، میوزک کے بنا مزہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں مومن کو قرآن کے بنا مزہ نہیں آتا ہے، قرآن چاہیے اس کو، قرآن کی چاشنی، قرآن کی شیرینی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اطمینان اس قرآن کے اندر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو اس میں بار ریپیٹ کرتا ہے، اللہ اس میں اپنی خلقت بتا رہا ہے، میں نے آسمان کو بنایا، انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، جنت بنائی، جہنم بنائی، اور بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اے انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ جھٹلا دی، یہ جھٹلا دی، یہ جھٹلا دی، یہ جھٹلا، ارے کتنی جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کا انبار ہے اللہ رب العالمین کی، تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات میں جو ہیں سب فنا ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی۔ کسی کو بقا نہیں ہے، سب کو موت آنی ہے، آپ کو بھی مجھے بھی سب کو آنی ہے، کوئی باقی نہ رہے گا۔ باقی کون؟ صرف اللہ رب العالمین، وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے سامنے کھڑے رہنے والوں کی فضیلت بتا رہا ہے کہ کل روز قیامت جب تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان آیت نمبر 46، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ انہیں 2 جنت دے گا۔ ڈرنے کا مطلب کیا؟ ارے بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ پوچھے گا، بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ سوال کرے گا، بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ کو جواب کیا دوں گا، وہ ڈر نہیں، عمل۔ ڈر لگ رہا ہے مطلب عمل۔ انشاءاللہ اتنی نیکیوں کو ایسا انبار لے کر جاؤں گا انشاءاللہ کہ میرا رب بولے گا میں نے اس پہ رحم کر دیا، معاف کر دیا۔ وہ ڈر کہ جو مجھے سدھارے، وہ ڈر جو مجھے بدلے، وہ ڈر جو مجھے نیکیوں کے قریب لائے، وہ ڈر نہیں کہ صرف ڈر کرتا رہوں اور مر جاؤں، وہ والا ڈر نہیں۔ اس کے بعد سورہ واقعہ، اللہ رب العالمین نے اس میں 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہل جنت میں جانے والے، پھر وہ لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دے گا، جنت والے، پھر وہ لوگ جن کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جہنم والے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ پھر وہی تذکرہ جو اللہ پہلے بھی کئی بار کر چکا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ یہ کھیتیاں جو چلتی ہے، اللہ چاہے تو چلے نہیں تو برباد ہو جائے، یہ پانی جو پیتے ہیں اللہ چاہے تو برسے نہیں تو نہ برسے، یہ سب اللہ کی قدرت خلقت ان کو نظر نہیں آتی، نظر آتی تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں آیت نمبر 60 اور اس کے بعد کی آیتوں میں سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحدید، حدید کہا جاتا ہے لوہے کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ذکر کیا ہے، لوہے کی اہمیت کو بتایا ہے، اس لیے سورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت قدرت کو بتایا، وہی مارنے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالنے والا، ماں کے پیٹ سے آسمان اور زمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا بنانے والا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بار پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی خلقتوں کا ذکر کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیارا انداز میں ہمیں اس کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 11 سورۃ الحدید، اللہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو کئی گنا بڑھا کر ریٹرن کرے گا۔ سوچیے اللہ کو قرضہ کوئی دے سکتا ہے بندہ؟ کیسے آپ اللہ کو قرضہ دیں گے؟ اللہ رب العالمین پوچھ لیا صحابی نے آ کر، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی کیسے ایسا ہوگا؟ اللہ کو کوئی کیسے قرضہ دے سکتا ہے؟ کہ اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی مدد کرنا،
اور اتنے خوش عمل، ان میں تو عمل کا جذبہ تھا نا، آیت سنتے ہی عمل، اور ہم لوگ سنتے ہیں کس لیے؟ پہ عمل، وہ با عمل تھے. کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کیا؟ اللہ کو اگر دیے تو ایسا مطلب اللہ اتنا ریٹرن دے گا؟ کہا ایسا کیجئے، میرا یہ باغ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں نے یہ اللہ کو قرضہ دے دیا، مطلب اس سے جو آئے گا غریبوں کو دو، جو آئے گا مسکینوں کی مدد کرو، خود دو. باغ کے اندر گئے، بیوی سے کہا ام دہدہ سنو، گھر سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرضہ دے دیا. وہ عورت کیا بولتی ہے؟ ربیحہ تو بڑا کامیاب ہو گیا، اتنی پیاری تجارت کر کے آ گیا، اتنی پیاری ڈیلنگ کر کے آ گیا کہ تو نے اللہ کو دیا اتنا سارا، اللہ دے گا اتنا سارا، بہت اچھی تجارت کر کے آیا. صحابہ عمل کرتے تھے اور ہم لوگ عمل نہیں کرتے. پیسہ ہے، انبار ہے پیسے کا، لکھا ہوا ہے پیسہ، گنتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں، پر کبھی کسی کی مدد نہیں کرتے، کبھی غریبوں کے کام نہیں آتے، کبھی مسکینوں کے کام نہیں آتے. تو بیکار ہے آپ کی یہ دولت، اور یہی وہ دولت ہے کہ کل روز قیامت یہ دولت آپ کو عذاب دیا جائے گا. اسی دولت سے اللہ رب العالمین آپ کو عذاب دے گا. اس کے اخیر میں آج کے درس کے اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 40 کے اندر، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، بس کھیل کود سے زیادہ کچھ نہیں، بس کھیلے کودے ختم. اور جانتے ہو کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت بتا رہا ہے، صرف فخر کا سبب ہے. کون کس سے آگے نکلے گا، کون کس سے بڑا بن جائے گا، مال میں کون زیادہ ہو جائے گا، اولاد میں کون زیادہ ہو جائے گا. اللہ کہتا بس یہی سب ہے تمہاری دنیا، بس یہی، ایک دوسرے سے کمپٹیشن، ایک دوسرے کے آگے ہوڑ، بڑا بننے کی ہوڑ، بس یہی ہے تمہاری زندگی، اتنی ہی ہے تمہاری زندگی، یہی تمہاری زندگی ہے. کیسے؟ جیسے کسان جب بارش ہوتی ہے نا تو اس وقت ہریالی بہت اچھی لگتی ہے، پر جب سوکھا پڑتا ہے سب جگہ بنجر ہو جاتی ہے. ویسے ہی یہ دنیا ہے، جب تک ہے بڑی رنگین نظر آتی ہے، اور جب نہ ہو تو بہت بری نظر آتی ہے. اللہ کہتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس لیے تم لوگ مغفرت کی طرف دوڑو، آخرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اور بالکل اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے ایک گناہ کا تذکرہ کیا آیت نمبر 27 سورۃ الحدید کے اندر، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ ان نصارہ نے ایک عمل یہ کیا تھا، رہبانیت کو ایجاد کر لیا تھا. مطلب وہ کیا بولتے تھے؟ اللہ والا بننا ہے نا، دنیا چھوڑ دو، سماج چھوڑ دو، کوئی شادی نہیں، کوئی بیوی بچے نہیں، چھوڑ کر ایک طرف چلے جاؤ، اللہ 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 کرو. اللہ نے بولا خود سے لکھا تھا، میں نے نہیں بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں بتایا. اور اسی لیے اسلام میں رہبانیت کو حرام قرار دیا، جسٹ اپوزٹ. دیکھیے، موکش کی پراپتی کے لیے اسلام نے یہ نہیں کہا دنیا چھوڑ دو، بلکہ ہمیں حکم دیا کہ اگر جوان ہو جاؤ فوراً شادی کرو. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ایک وہ مومن جو صرف عبادتیں کرے، ایک وہ مومن جو شادی کرے، بچے ہوں، ان کے لیے کمائے کھائے اور فرض عبادت کرے، بہتر کون؟ کہا یہ بہتر. کیونکہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تیرا حق کیا ہے، تیرے حقوق کیا ہے، تیرے معاملات کیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک آدمی الگ ہو کے عبادت کر لے وہ تو آسان ہے نا، پر دنیا کے ساتھ رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ کی نظر میں زیادہ بڑا ہے. کہ تجھے دنیا سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، دولت سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، کاروبار سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، پیسے سے فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ سب چیز ہونے کے بعد بھی تو جھکتا جا رہا ہے، اللہ سے مانگتا جا رہا ہے، اللہ اسے زیادہ پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اسے زیادہ قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن. اے اللہ ہم تیرے محتاج، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں باعمل بنا دے، اے اللہ ہمیں بے عملی سے دور کر دے. اے اللہ ان جاگنے والی راتوں میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ جو بھی ہم نے تیرے لیے عمل کیے اللہ اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہماری روزے، ہماری نماز، رات جاگنے کو قبول فرما لے. اے اللہ دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ کر دے. اے اللہ رمضان یہ رحمت والا مہینہ خالی مت جانے دے. اے اللہ ہمیں یقین ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو چاہے تو کن فیکون، اللہ اس کا علاج نازل فرما دے، اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ زندگیوں کو دوبارہ نارمل کر دے. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.